Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Now we'll discuss magnetic effects of electric current part 2, class 10th. We've already discussed what is magnetic field, how it is associated with current, Oersted experiment, magnetic field lines क्या होती है, उनकी properties क्या होती है, ये सब हम कर चुके हैं. Now let's see. Now let's see what is solenoid. What is a solenoid? A coil of many circular turns of insulated copper wire. It is made up of what? Copper wire नहीं है, insulated copper wire है, उनके बहुत सारे जब turn किए, then it is called as solenoid, wrapped closely in the shape of a cylinder, then it is called as solenoid. So let's see how it is. यहाँ जो डैश लाइन्स दिख रही हैं आपको, ये solenoid है. Okay, so let's see. This is your solenoid and it is connected to battery key. Okay, this is positive terminal, this is negative. अब अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसमें क्या फ्लो होगा? करंट. तो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर. यस और नो? लाइक दिस यू कैन सी. तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर, 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 alright guys, this is the flow of current in a solenoid. So अब obviously current है तो वहाँ क्या flow होगा? Magnetic field lines आएंगी या magnetic field आएगा. So जब current flow होता है तो उसके आसपास क्या होगा? current के आसपास magnetic field lines generate होंगे. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे कैसी हैं? यहाँ पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देंगी. सॉरी माय बैड. यहाँ कैसे दिख रही है आपको? क्लॉकवाइज. तो वहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखी और यहाँ पे कैसे दिखी? क्लॉकवाइज. ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, लूप में किस तरह डायरेक्शन करंट जा रहा है, कहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है. उसकी वजह से क्या होगा? देयर वुड बी अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल डेवलप्ड एट 2 पॉइंट्स. एक जगह नॉर्थ पोल, एक जगह साउथ पोल डेवलप होगा. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. यूजिंग राइट हैंड थंब रूल we can draw the pattern of what? Magnetic field lines around a current carrying solenoid. One end of the solenoid behaves as magnetic north pole while the other end behaves as south pole. The field lines यहाँ पे आएगा. The field lines inside the solenoid are in form of a parallel straight lines. That implies what? Magnetic field inside the solenoid. Solenoid के अंदर अगर आप देखेंगे तो field lines are very much straighter. So what it implies? That magnetic field inside the solenoid is same at all points. That is, field is uniform. Magnetic field inside the solenoid is always what? Uniform. Do remember this. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है
strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron. हमने जो solenoid देखी उसी solenoid का जो curvatures थे उनके बीच में अगर हम कोई soft iron place करें and at that time we pass the current to solenoid, तो उस current की वजह से आसपास magnetic field है, but solenoid के अंदर कैसा magnetic field है? यूनिफॉर्म. तो जो सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड होगा उस कॉइल्ड रैप्ड सोलेनॉइड के अंदर, वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाता है, बिकॉज वहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू व्हाट? मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल व्हाट? soft iron. When it is placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. Because किसकी वजह से मैग्नेट बनी है? वो मैग्नेट बनी है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वो मैग्नेट बनी है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स आर डिफरेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती हैं? व्हेन we pass on the current through the solenoid and we place the soft iron core inside the solenoid. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सॉफ्ट आयरन कोर किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में. उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है, जनरेट हो रहा है. नाउ कम टू द फोर्स. किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या आता है? फोर्स आता है. फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मिस्टर एम्पियर, एंड्रे मरी एम्पियर, suggested that magnet also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. यहाँ क्या बता रखा है? इस एक्सपेरिमेंट में ये बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट किया किससे? यहाँ पे एक स्टैंड लगा रखा है. इस स्टैंड के अंदर हमने एक मैग्नेट लगा रखी है. यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये साउथ एंड है इसका, ये नॉर्थ एंड है इसका, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक रॉड प्लेस की हुई है, और उस रॉड को एक एंड यहाँ टाइड है, एक एंड यहाँ टाइड है, दूसरा एंड सर्किट कंप्लीट हुआ. तो इस सिस्टम में मतलब हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट किया एक रॉड को हैंग कर रखा है, और बैटरी का दूसरा एंड रॉड से कनेक्ट कर रखा है की के थ्रू. क्लियर है? नाउ जहाँ वो करंट से कनेक्टेड है ना रॉड, उसके आसपास हमने क्या अप्लाई किया? कुछ सिस्टम्स अप्लाई करके हमने वहाँ मैग्नेटिक हॉर्सशू मैग्नेट रखे, उसके दोनों एंड्स की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. तो वहाँ एक डायरेक्शन में साउथ, नॉर्थ टू साउथ क्या जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो रॉड के अंदर क्या आएंगे? जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने स्टार्ट किया, रॉड के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं. वो स्टेबल हो रखी थी पहले, लेकिन फिर भी वो मूव करती है एक तरफ. क्यों? अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है, अगर वो मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स जिसने उसको क्या किया होगा? पुश पुल किया होगा इधर उधर. तो उस फोर्स की वजह से जब वो मूव कर रही है, तो हम क्या कंक्लूड कर पाए कि मैग्नेटिक फील्ड व्हाट, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड रॉड के ऊपर, रॉड के अंदर क्या था? करंट. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग सम फोर्स ऑन दिस करंट. ओके, इन द सीनियर क्लासेस यू विल मोर लर्न अबाउट दिस फोर्स, कि फोर्स कितना होता है. बता देता हूँ. इस फोर्स की वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो होता है इसका वो क्या होता है? BIL. Bill means B is what? Magnetic field, I is what? Current, L is what? Length of the conductor. तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट की वैल्यू पे, एंड कंडक्टर की लेंथ पे. उस पर डिपेंड करता है कि ये फोर्स कितना अप्लाई होगा, या कितना लगेगा, कितना एग्जर्ट होगा.
ओके, एल्यूमिनियम रॉड शुड बी बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ताकि उस पर आराम से क्या लग सके, फोर्स अप्लाई हो सके. We'll observe that the rod will displace, that is the rod will experience a force when it is placed in magnetic field, where in perpendicular direction to its length. Length, current, magnetic field are important. The direction of the force will be reversed. Force का direction reverse हो जाएगा अगर current का direction क्या होगा, reverse हो जाए. क्यों? क्योंकि force magnetic field और current पे depend कर रहा है. तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया हमने सर्किट में, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल रिवर्स. इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज. देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये हम पहले बता चुके हैं दैट मैग्नेटिक फोर्स depends on magnetic field also, depends on current also, depends on length of the conductor. length अगर लंबी होगी, ओके, तो बेसिकली अगर दो एस्पेक्ट्स देखें, बी और आई पे डिपेंड करता है. ये हमने बता दिया यहाँ पे कि अगर करंट का डायरेक्शन में रिवर्स किया तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने रिवर्स किया बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ओके, देन फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा. नाउ लेट्स कम टू लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल. लेफ्ट हैंड रूल तो ऑब्वियसली राइट हैंड यूज नहीं करना है, अभी लेफ्ट हैंड यूज करना है. क्या कहता है, याद कैसे करें, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड. यहां मदर कौन है, मदर से आगे एम, एम से मोशन, फादर था एफ से फील्ड, चाइल्ड था सी से करंट. ओके, सी फॉर करंट, दिस इज मिडिल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर फील्ड, मदर थंब. ओके, सो दिस मोशन defines what, force, field, current, force, field, current. Okay, force, field, current, force, field, current, force, field, current, force, field, current. Three of them must be what? यहाँ क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया होगा आपको, I'll explain. Perpendicular. परपेंडिकुलर मीन्स इस तरह होनी चाहिए, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर. क्लियर है? ऑलराइट. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर क्या है, फोर फिंगर, in such a way that they make an angle of 90 degree and the conductor is placed in the magnetic field, experiences what? Magnetic force. तो ये force को define करता है, current, magnetic field, force. Clear है? I hope it is clear. इसी को आगे देख रहे हैं हम. देखिए, magnetic field, current, thrust और motion, force. motion का मतलब force लगेगा तभी तो किसी चीज़ का motion होगा. तो thrust मतलब force, जिस डायरेक्शन में force लग रहा है उसी डायरेक्शन में motion होगा. फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, करंट एंड थंब, मोशन या फोर्स. इसी को कहते हैं हम क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली थंब किधर बताएगा कि उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा. इस पे कौन बेस्ड है? See, functioning of what? Electric motor. जहाँ पे भी मोटर यूज होती है, it is based on this rule. और मोटर का काम क्या होता है? It converts electrical energy into mechanical energy. घर में अगर आपने टेरेस पे टंकी में पानी चढ़ाने के लिए घर में मोटर लगा रखी है, तो मोटर क्या कर रही है? आप करंट ले रहे हो उस मोटर के अंदर, और मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ले रही है, पर उस करंट की हेल्प से क्या कर रही है?
रोटेट होती है और वो पानी को थ्रस्ट देती है, फोर्स देती है टू पुश इट फॉरवर्ड। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे हम मोटर क्या होती है, पर मोटर किस पे बेस्ड है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या देते हैं? फोर्स देते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रखें, आगे देखेंगे। ऑलराइट, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट। जैसे मैग्नेटिक कंपास जो काम करता था, इफ पॉइंटर इज 0 देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। इधर होगा तो करंट, इधर होगा तो करंट। इफ इट रिफ्लेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ राइट और लेफ्ट, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये इसको इसको EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। क्लास 12th में जब आप जाते हैं तो EMI और थोड़ा हायर बेसिस पे एक्सप्लेन फॉर्म में आता है। ऑलराइट, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जितना भी है क्लास 12th में और ज़्यादा डिटेल में आता है, यहाँ पे मेयर इंट्रोडक्शन है उसका। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज ब्रॉट क्लोज टू द कॉइल, किसी कॉइल के पास लाया जाए, और अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल के पास लाया जाए या कॉइल से दूर लाया जाए, we see momentary deflection in the needle of the galvanometer, okay, on either side. Similarly, if we keep the magnet stationary, हमने मैग्नेट स्टेशनरी रखा और अगर उसके आसपास हमने क्या किया, या तो हम कॉइल को मूव कर लो या मैग्नेट को मूव कर लो, मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। कॉइल मूव किया, मैग्नेट स्टेशनरी रखा, कॉइल स्टेशनरी रखा, मैग्नेट मूव किया, मतलब उन दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ मैं? Relative motion. If both bar magnet are kept coil stationary, there will be no deflection. अगर दोनों stationary हैं तो कोई deflection नहीं होगा। ओके, किसी एक को भी मूव करोगे तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, दोनों को मूव नहीं कर रहे हो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है? मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट का या मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल का, चेंजेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है किसके अंदर? मैग्नेट की वजह से कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है अगर रिलेटिव मोशन होगा। ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, potential difference is induced in the same coil which set up an induced current. वापस सुना इस कहानी को, इंपॉर्टेंट है सुनना। EMI का कंसेप्ट क्या है? when there is relative motion between a, ये कॉइल है हमारा, यहाँ मैग्नेट है, ओके, इन दोनों में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, कभी इसको हिला रहे हैं कभी इसको हिला रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हो रहा है? इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पास लाएंगे दूर ले जाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या कभी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पास लाएंगे तो ज़्यादा कम हो रही हैं, दूर लाएंगे ज़्यादा, ऐसा कुछ डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा। उस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड in the coil changes, magnetic field lines या magnetic field जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? V, potential difference arises, यही है EMI,
कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या है कि कितने एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, वो फ्लक्स, वो चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ तो अब क्या आएगा पिक्चर में, इंड्यूस्ड करंट अराइजेस। तो व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई सिंपली क्या है, यहां हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब क्या है, आगे म्यूचुअल इंडक्शन भी देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा हम बताएंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या है कि एक तो मैग्नेट है, एक कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट नहीं है कहीं भी, बट फिर भी अगर कॉइल के आसपास हमने किसी मैग्नेट को मूव कराया या कॉइल को मूव कराया तो कॉइल में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा और उसकी वजह से कॉइल के अंदर क्या अराइज हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। इस कंसेप्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। ओके, इसी का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, यहां म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या यूज किया, एक प्राइमरी कॉइल यूज करी, एक सेकेंडरी कॉइल यूज करी। डिफरेंस क्या है, प्राइमरी कॉइल में बैटरी है, वहां बैटरी है क्या, प्राइमरी कॉइल में, सॉरी, प्राइमरी कॉइल में क्या है, बैटरी है। प्राइमरी कॉइल में बैटरी है मतलब करंट है। करंट है तो इसकी वजह से आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यस और नो? मेरे में अगर करंट है तो मेरी वजह से मेरे आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कोई उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज होगा। अगर वो बार बार आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, तो उसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। समझो, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की वजह से यहाँ आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब इसमें सेकेंडरी कॉइल में हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर अरेंज किया। अब देखो, जैसे ही हमने की को फिक्स किया, की अंदर डाली, बैटरी से कनेक्ट हो गई हमारी कॉइल, तो हमने डिफ्लेक्शन देखा किसमें, गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ प्लग आउट द की बाहर निकाल ली तो करंट में, करंट मतलब करंट फ्लो सर्किट में प्राइमरी कॉइल में रुक गया। प्लग आउट द की एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विच विल बी इन व्हाट, रिवर्स डायरेक्शन। करंट था तब एक तरफ, करंट नहीं है तब एक तरफ। Hence we conclude that potential difference is induced in the secondary coil whenever there is a change in current in primary coil by on and offing the key। क्या कह रहा है ये, जब हमने इसकी की ऑन करी तब उसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऑन करी ऑफ करी, ऑन करी ऑफ करी, ऑन करी ऑफ करी, ऑन करी ऑफ करी, कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमने क्या ऑब्जर्व किया, गैल्वेनोमीटर भी कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब करंट के जाते ही तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो जाना, एकदम से इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, बट एटलीस्ट कम जरूर हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जैसे खत्म हो तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होने लगा, फिर करंट आ गया, फिर कम होने लगा, फिर करंट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्शन का भी कंसेप्ट वही है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस। पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट राइजेस। अब सेल्फ और म्यूचुअल में डिफरेंस समझे। सेल्फ क्या था, जब मैग्नेट की वजह से किसी कॉइल में करंट आ रहा था वो सेल्फ इंडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, किसी एक कॉइल में करंट होने की वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, ये कहलाता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, वो सेल्फ इंडक्शन था। सेल्फ मीन्स
मैग्नेट की वजह से चेंज हो रहा है। यहाँ एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइज हो, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ करंट आ रहा है, ये आता है म्यूचुअल। तो ईएमआई के ऊपर ही बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड? अभी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब आ रहे हम राइट हैंड रूल पे। यहाँ पे मदर कौन है? मोशन। फादर कौन है? फील्ड। फिर से चाइल्ड कौन है? करंट। ठीक है, बट चाइल्ड वही मिडिल फिंगर, फादर वही फोर फिंगर, मदर वही थंब, लेकिन एंड थ्री ऑफ देम मस्ट बी व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रूल कैसे डिफाइन करता है? स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर और राइट हैंड। ये तो क्या है? मोशन या फोर्स। ये क्या है? फील्ड, करंट। यहाँ भी फोर्स फील्ड करंट थे, यहाँ पे फोर्स फील्ड करंट है। डिफरेंस क्या है? यहाँ लेफ्ट हैंड रूल में फील्ड और करंट की वजह से फोर्स आया था, यहाँ ऑलरेडी हम फोर्स लगा रहे हैं किस जनरेटर पे? गांव में चलाते हैं ना हम पंप, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, उसकी वजह से क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट। करंट हम प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट। चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर, दे आर स्ट्रेच्ड। The forefinger indicates the action of magnetic field, thumb shows the direction of motion, and then middle finger shows the direction of induced current. देखिए इधर, forefinger magnetic field, thumb motion of a conductor, then middle finger denotes the direction of induced current. Okay? यहाँ पे भी फोर्स फील्ड करंट ही है, लेकिन फोर्स और फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस इज द बेसिस फॉर व्हाट? जैसे लेफ्ट हैंड रूल, मोटर इसी के ऊपर बेस्ड है, लेफ्ट हैंड रूल पे। राइट हैंड रूल पे कौन बेस्ड है? करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जनरेटर्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे बेस्ड कौन है? जनरेटर। ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थ्रस्ट और मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। क्लियर है? दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉयड। हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में? व्हाट वी हैव लर्नड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या क्या हुआ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, कभी भी किसी करंट के, किसी भी कंडक्टर में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, सॉलिनॉइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, ये हम सब चीज़ें देख चुके हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.